آپ دیکھ رہے ہیں بیجاپور سمائے، میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی۔ بیجاپور میں پہلے رمضان سے 27 رمضان تک صرف خواتین کے لیے چلے تفسیر قرآن کا خصوصی دعا کے ساتھ ہوا اختتام۔ زندگی کو قرآن کے نور سے روشن کرنے، خواتین میں دین کی بیداری لانے اور ہر گھر میں قرآن کے ترجمے کو عام کرنے کے مقصد کے ساتھ پچھلے تقریباً 25 سالوں سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خواتین میں زینت آپا کے نام سے مشہور اسلامک اسکالر، عالمہ، فاضلہ، محترمہ سیدہ زینت انعامدار محمدی کے زیر نگرانی میں ہر سال پہلے رمضان سے 27 رمضان تک ایمان کی تازگی کے ساتھ بہت بڑے اور شاندار پیمانے پر دینی اجتماع منعقد کر تفسیر قرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس سے آن لائن اور آف لائن کثیر تعداد میں خواتین جڑ کر اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن کے نور سے روشن کر رہی ہیں۔ خواتین میں تقویٰ، پرہیزگاری بڑھ رہی ہے اور قرآن کے ترجمے کو اچھے سے سمجھ کر امت کی بیٹیاں قرآن کے اور قریب آ رہی ہیں، جس کے چلتے ہر سال کی طرح اس سال بھی رحمتوں اور برکتوں کا مقدس اور پرنور مہینہ ماہ رمضان میں بیجاپور شہر کے ثقاف روزہ محلہ KKGS روڈ ڈاکٹر یسڑی انعامدار کلینک کے پیچھے موجود محترمہ زینت آپا کے مکان میں مدرسہ احسن البیان کی جانب سے خواتین میں زینت آپا کے نام سے مشہور اسلامک اسکالر، عالمہ، فاضلہ سیدہ زینت انعامدار محمدی کے زیر نگرانی میں پہلے رمضان سے 27 رمضان تک صرف خواتین کے لیے تفسیر قرآن کا اہتمام کیا گیا، جس کا آج 17 مارچ 2026 بروز منگل اس سال رمضان کے 27ویں روزے پر خصوصی دعا کے ساتھ اختتام ہوا۔ اس روحانی مجلس میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت فرما کر اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے استفادہ حاصل کر اپنی زندگی کو قرآن کے نور سے روشن کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ جو خواتین کسی وجہ سے اس تفسیر قرآن پروگرام میں نہیں پہنچ سکتی، ان کے لیے مدرسہ احسن البیان کی جانب سے آن لائن کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ماہ رمضان میں 27 دنوں تک چلے اس تفسیر قرآن کو لے کر خواتین نے جانکاری دیتے ہوئے اپنے اپنے خیالات پیش کیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اتنا بڑا کر دے، اتنا مضبوط کر دے، ہم اپنے غلطیوں کی معافی مانگ سکیں، ہمارے دل کو متکبر دل نہ بنا، اللہ ہمارے دل کو گھمنڈی دل نہ بنا۔ جس دن دل برباد ہو گیا اے رب، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اللہ ہم سے رحم فرما، اللہ ہم سے رحم فرما، اللہ ہم سے رحم فرما۔ اللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اے اللہ تیرے دین کی خاطر گزرے، تیرے اسلام کو قائم کرنے کی خاطر گزرے۔ اللہ قرآن سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، صاحب قرآن ہم کو بنا دے، علم سے محبت کرنے والے بنا، قبر کو ہمارے لیے قبر میں قرآن کو سفارش بنا، میدان حشر میں قرآن کو ہمارے لیے سفارش بنا۔ اللہ ہمت دے، ہمت دے، ہمت دے، اللہ اسلام کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ جب تم میرے پاس آئے تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اللہ اللہ موت کو آسان بنا دے، اللہ موت کو آسان بنا دے۔ بڑا ڈر لگتا ہے اللہ قبر کے اندھیرے سے، بہت ڈر لگتا ہے، ہم کو عادت ہے تیرے رحم و کرم کی۔ اللہ تو ہم پہ نظر نازل نہ کر، اللہ تو ہم پہ غصہ نازل نہ کر، اللہ ہم کو عادت ہے تیرے رحم و کرم کی، ہمیشہ تیرا رحم و کرم ہم پہ نازل فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک ونتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد رسول الکریم، اما بعد۔
रब्बि शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू कौली। आज हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है आज कि यहाँ पर कुरान की तफसीर मकतब इसरुल बयान की तरफ से आज जो यहाँ पर पूरे 27 दिन पूरे कुरान शरीफ की तफसीर व तजवीद यहाँ पर बताई जाती है, तो इसका सहरा जो है इस्लामिक स्कॉलर सैयदा ज़ीनत इनामदार मोहम्मदी को जाता है, जिन्होंने जो है बेहतरीन अंदाज में करंट जो हालात है इसे साइंस की रोशनी में और कुरान शरीफ की रोशनी में इसकी तफसीर के तहत हमें रोज़ भी आशना कराए। ये जो इज्तिमा हो रहा है अहसरुल बयान का, ये करीबन 25 साल से लगातार जो है आपा इसके खिदमत अंजाम दे रही हैं। सबसे पहले मनियार हाउस में जो है इसका बीज बोया गया था, इसके बाद वहाँ पर तकरीबन 10 साल तक इन्होंने हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से साथ दिया। और इसके बाद सागर हॉल वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि 10 साल तक इन्होंने भी बेहतरीन अंदाज में 1 रुपया ना लेते हुए इस इज्तिमा का इनेकाद किया। और यहाँ पर गुज़िश्ता 4 से 5 सालों से आपा के घर में जो है ये इज्तिमा मुनक्कद हो रहा है। यहाँ पर ये रमज़ान का बाबरकत महीना हमसे आहिस्ता आहिस्ता छूटता चला जा रहा है। इसके मिज़दाक एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। बेज़ुबां को वो जब ज़ुबां देता है, बेज़ुबां को वो जब ज़ुबां देता है, पढ़ने को वो जब कुरान देता है। बख्शने पे आ जाए जब वो उम्मत के गुनाहों को, बख्शने आ जाए जब वो उम्मत के गुनाहों को, तोहफ़े में गुनहगारों को वो रमज़ान देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि आपा की जो ये खिदमत है, आपा की जो ये बेलौस खिदमत है, जो कुरान की तफसीर यहाँ पर बताई जा रही है, ये सिर्फ माह रमज़ान में नहीं बल्कि हर 15 दिन में जो है ऑनलाइन ऑफ़लाइन यहाँ पर जो है दर्स व तदरीस यहाँ पर होती है, इज्तिमा होता है, ऑफ़लाइन इज्तिमा यहाँ पर मुनक्कद किया जाता है। इससे ना सिर्फ शहर बीजापुर के बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों के जो है लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। और सिर्फ दीन के साथ दुनियावी मालूमात के साथ दीनी मालूमात, दीनी व असरी मालूमात से आपा जो है सरफराज करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मैं समझती हूँ उनके पीछे कदीर मौलाना का भी है, आपका साथ है आपा के साथ में। और ये मैं दुआ गो हूँ कि आपा को सेहत बख्शे अल्लाह, तंदुरुस्ती बख्शे और ऐसे बाबरकत मंजलिसों में जहाँ पर अल्लाह का नुज़ूल होता है, जहाँ पर फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, तो ऐसी बाबरकत मजलिसों में अल्लाह हमें बार बार बुलाए और बार बार जो है इससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करें। आखिर में एक शेर अर्ज़ कर अपनी मुख्तसर सी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सुबह होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्ररा वक्त कोई भी नहीं इसकी इनायत का, अल्लाह तबारक व तआला के मिज़ाज, मुकर्ररा वक्त कोई भी नहीं इसकी इनायत का, इसे जब भी पुकारो इसकी रहमत जाग जाती है। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र व एहसान व करम है कि अल्लाह ने ऐसी बाबरकत मजलिसों में हमारा आना कबूल करे, हमारे यहाँ थकना कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारी इबादतों को कबूल करे। और मोहतरमा इस्लामिक स्कॉलर ज़ीनत आपा मोहम्मदी का और कदीर मौलाना के और तमाम हमारे वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम किया। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इनका भी मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करती हूँ, मंटप वालों का, आप कैमरामैन का, और जितने भी मेरे आए हुए यहाँ पर मेरी अज़ीज़ बहनें हैं, इन तमाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमारे यहाँ पर आना कबूल करे। बस मुझे इतना थोड़ी सी बात कहने का मौका दिया, लब कुशाई का मौका दिया, आपका शुक्रिया। कुरान के नूर से ज़िंदगियों को रोशन करने के लिए हर साल माह रमज़ान में तकरीबन 25 सालों से ज़ीनत आपा मुसलसल बेलौस खिदमत इस तफसीर कुरान को एहतमाम कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी यही कहना चाहूँगी कि 25 सालों से माशाल्लाह मैं भी जो हूँ उसका एक हिस्सा हूँ। गुज़िश्ता 25 सालों से हम आपा के साथ हैं, तो हर एक मोड़ पे और चढ़ते हुए देखा है, इसे उरूज की तरफ देखा है मैंने। तो अल्लाह से यही दुआ है कि ये आपा को सेहत बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे। जो काम आपा कर रहे हैं ये कोई मामूली काम नहीं है। गुज़िश्ता 25 सालों से एक लगातार एक मुसलसिल आपा की जो कोशिश रही है कि सिर्फ दीन की तरफ, सिर्फ कुरान की तरफ हम अपने लोगों को लेकर आए, सिर्फ इस्लाम की तरफ, अल्लाह की वहदानियत की तरफ, अल्लाह को जो है बंदों को जो है आपा जमा कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वहदानियत के लिए। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ को हूँ कि अल्लाह आपा को सेहत बख्शे, कदीर मौलाना साहब को सेहत बख्शे और ऐसी ही बाबरकत मजलिसों में
अल्लाह तबारक व तआला हमारा आना कबूल करे यहाँ इससे पर। बड़ी तादाद में ख़वातीन जुड़ रही हैं, क्या इससे ख़वातीन में चेंजेस लग रहे हैं? बहुत बहुत ज़्यादा है मेरे मोहतरम भाई। इतनी मैं देख रही हूँ गुज़िश्ता 25 साल पहले का जो माहौल था, खुद हमारे में भी बज़ाते खुद जब हम कहना चाहेंगे तो बहुत सारे ख़वातीन में मैंने चेंजेस देखे हैं, मेरे खुद से कह रही हूँ मैं ज़ाती तजुर्बे से। और जब आते हैं तो आकर सिर्फ सुनकर चले जाना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पर जो दीन की, जो इस्लाम की, जो कुरान शरीफ की जो तफसीर आप बता रहे हैं, ये आज के करंट दौर को लेकर बता रहे हैं। जो थे परसों आप अपने तफसीर में बता रहे थे मोबाइल की शक्ल में, तो पुराने दौर को सिर्फ लेना काफ़ी नहीं है, पुराने 3000 साल पहले के दौर को लेकर आज की जो जदीद साइंस है, इसे आप जो इंटरेक्ट करते हैं, ये हमारे बच्चों के लिए, ये हमारी कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है। और जो भी हम यहाँ पर सीखते हैं तो उसे हमारे अज़दवाजी ज़िंदगी में हम जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जितनी भी बहनें आती हैं तो वो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाती हैं। ये अल्लाह का फजल करम है मेरे लिए। इससे इस मॉडर्न ज़माने में ख़वातीन में तक़वा परहेज़गारी बढ़ रही है? बढ़ रही है, बेशक बढ़ रही है, बेशक बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों में जो है माशाल्लाह से बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो मुझे कुछ कहने का मौका दिया गया, लब कुशाई का मौका दिया गया। आखिर में बस एक शेर का अर्ज़ करना चाहूँगी, तो सुबह न देख शाम न देख, मशकूक निगाहों से कोई काम न देख, तो वक्त न देख सुबह न देख शाम न देख, मशकूक निगाहों से कोई काम न देख, है जानिब नेकी तेरी नीयत मरकूज़, है जानिब नेकी तेरी नीयत मरकूज़, आगाज़ से पहले कभी अंजाम को ना देख। बस शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज इज्तिमा का आखिरी दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपा ने बहुत बहुत प्यारी दुआ की। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस दुआ के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। हाँ ज़रूर, क्यों, वो बड़ा रहीम है, करीम है। और अल्लाह ताला देखेगा भी तो दुआ कौन कर रहा है? उम्मत मुस्लिमा की वो शहज़ादी जो पिछले 24 सालों से खिदमत खल्क में लगी हुई हैं। इनमें इनका कोई ज़ाती मफाद या कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं, बेलौस होकर दावत का काम कर रही हैं। हम तो सामीन हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सुनने वाले हैं। यहाँ रोज़ आते हैं, सुनते हैं और अपने अपने घरों को जाते हैं। इन सब के पीछे आपा की इतनी मेहनत, मकसद सिर्फ एक, हम औरतों की इस्लाह हो जाए, हर माँ की, हर बहन की, हर बेटी की, दूसरा कोई मकसद नहीं। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये दीन इस्लाम की वो शेरनी है, जब भी ये दहाड़ती है तो हम गुनहगार औरतों की रूह काँप उठती है, दिल धड़कने लगते हैं और दिल कह उठता है हम गुनहगार बंदे हैं, हमारी इस्लाह कैसे होगी? जब उनका बयान सुनते हैं चुपचाप अदब से बैठकर, बस दिल के गोशे से आवाज़ आती है, अल्लाह इस दीन की शहज़ादी पर हज़ारों तख्त व ताज कुर्बान। ये जो दीन हम औरतों की इस्लाह करती हैं, ये लोगों के दिलों पर हुकूमत करती है। अल्लाह इनकी खुशियों में, सेहत में, औलाद में बरकत दे। इंशाअल्लाह ये इज्तिमा अगले 50 सालों तक यूँ ही चलता रहे। और दूसरी बात, आपा ने अपने शागिर्द भी इतने अच्छे तैयार किए। हाँ भाई, जिसका उस्ताद माशाअल्लाह से इतना ज़हीन, जिसके पास इतनी डिग्रियाँ, इतना दीन का ख़जाना हो, उनके शागिर्द भी कैसे होंगे? मसलन निशात आपा, परवीन आपा, जबीन आपा, बतूल मैडम, कुरैशी मैडम, ये बहुत से अनमोल मोती है। मुझे नाम याद नहीं है, ये इनके ख़जाने में से हैं। और क्या कहूँ, बस बिल्कुल मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, मुझे ये सिर्फ बोलने का ज़र्फ पिछले कई सालों से उनके बयान सुनने से आए। मैं उनके स्टूडेंट नहीं हूँ, बस हम सुनने वाले हैं, सामीन हैं। बस आखिरी में अहमद फराज का ये शेर अर्ज़ करती हूँ, सुना है उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, सुना है उनके मुंह से फूल झड़ते, ये बात है, ताओ इनसे बात करके देखते हैं। मैं ज़रा इसे बदलती हूँ, मैं इसे ज़रा बदलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने देखा है उनके मुंह से फूल झड़ते, ये बात बिल्कुल सही है। और इनके बज़म में बैठ कर देखते हैं, आओ इनके बस में बैठ कर देखते हैं। दूसरा शेर अहमद फराज का, सुना है लोग उनको आँख भर भर के देखते हैं, सुना है लोग उनको आँख भर भर के देखते हैं, ये बात है तो कुछ दिन उनके शहर में ठहर कर देखते हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल बिल्कुल हम औरतें उनको आँख भर भर के देखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आओ इनकी बस में कुछ दिन आकर देखते हैं। बस इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ, अल्फाज ख़त्म हो गए।
और बहुत बोलना बाकी है, लेकिन अल्फाज ख़त्म है। बस ऐसी मजलिस में हमेशा हमें आने की तौफीक अता फरमाए। आपा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना अल्फाज ख़त्म करती हूँ। कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पर? हम बहुत साल से आ रहे हैं। क्या आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है? बहुत फ़ायदा। हमारी तो आधी ज़िंदगी जहालत में गुजर गई, अभी हम सीधे रास्ते पर बैठे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं शोलापुर की हूँ, मेरे को इधर दिए हैं बीजापुर। हम आपा के बहुत अच्छे, मतलब बहुत हमारी ज़िंदगी में तौहीद आ गई है। हम सीधे रास्ते पर, अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दिया है जीनत आपा से। अल्लाह दुनिया में भी जीनत आपा का साथ और आखिरत में भी उनके साथ अल्लाह नसीब करे। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपना असली रूप दिखाने के लिए, अपने अंदर छुपे उस शेर को जागृत करने के लिए? आज से शुरू होती है आपकी नई जर्नी प्रो बॉडी लाइन फिटनेस के साथ। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।